So today we will be discussing about the histology of cartilage. Already we have discussed that cartilage is a connective tissue. So because now looking at cartilage as a connective tissue, so it should have connective tissue behind a range. It has cells. It has cells. Okay. So because cartilage is connective tissue, it should have cells. It should have matrix and fibers. Okay, so right now I am giving you what we are just taking it forward from the previous lecture. So in the cells there should be chondroblasts, chondrocytes. Okay. In the matrix there is glycans, aminoglycans, and what is there? Glycoproteins. Glycans, aminoglycans, and glycoproteins. Glycans, aminoglycans are chondroitin 4 sulfate, chondroitin 6 sulfate, chondroitin 4 sulfate, chondroitin 6 sulfate, then keratin sulfate. And the glycoprotein is chondronectin. Now when you look at cartilage as a connective tissue, fibers in the three types of cartilage. In the hyaline cartilage there will be collagen type 2. In fibrocartilage there will be collagen type 1, because fibrocartilage is toughest. And in the elastic cartilage there will be elastic fibers. Okay, so this is just a basic structure of the cartilage. Those who are still writing before I rub it, considering cartilage as a connective tissue, it has cells, chondrocyte, chondroblast, matrix, glycans, aminoglycans, and glycoproteins. And there are three types of cartilages: hyaline cartilage, fibrocartilage, and elastic. So in hyaline cartilage, collagen type 2; in fibrocartilage, toughest, collagen type 1, and in elastic cartilage, So then we go ahead and draw the diagram, starting with the hyaline cartilage. Now hyaline cartilage is present. Hyaline cartilage also has two types. One is non-articular hyaline cartilage, and articular hyaline cartilage. Articular hyaline cartilage is at the ends of the long bones where it forms the joints. Ends of the long bones where it forms the joints. The main difference between non-articular and articular is articular cartilage does not have perichondrium. No perichondrium. Okay? No perichondrium. To make it smooth. Now this articular cartilage has a perichondrium. Peri around, chondrium around the cartilage. Perichondrium has two layers: outer fibrous layer and inner cellular layer. Inner cellular, which is called as chondrogenic layer. Outer cellular, inner chondrogenic layer. Genetics, formation. So this inner layer will lead to formation of new cartilage, which is absent in articular cartilage. Therefore, take care of your joints. Your joints are covered by articular cartilage which does not have perichondrium.
सडनली एक दिन आपको मूड हो गया कि मैं 0 फिगर मुझे चाहिए, और फिर सडनली आप रास्ते पे से भागने लगोगे, फिर स्किपिंग रोप 1000 स्किपिंग, उधर आपका फीमर टिबिया वो आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा और वो वापस फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं फॉर्म होगा? बिकॉज देयर इज नो पेरिकॉन्ड्रियम, एंड पेरिकॉन्ड्रियम हैज कॉन्ड्रोजेनिक लेयर। ओके, तो ज्यादा जोश में नहीं आने का। ओके, एक्सरसाइज जब करना है, द शूज शुड बी शॉक अब्सॉर्बिंग शूज। आप जब भागते हो समंदर की रेती पे से, पैर ऐसा अंदर जाता है ना, that means that is the kind of pressure you are putting on the ground. And when you are doing the same running on the tar road, that is the pressure the road is giving back to you. इसके लिए हम जो अर्थ है उसको मदर अर्थ बोलते हैं, भूमाता। शी इज लाइक मदर। मदर को क्या आपने बचपन में इतना कुछ लात मारा है? मदर ने वापस मारा आपको कभी? तो she absorbs the shocks. Tar road doesn't. वो वापस देता है, वो स्टेप मदर। तो टार रोड, फिर अपना क्या बोलते हैं, जिम का ट्रेडमिल, उस पे लोग ऐसा भागते भागते भागते, बाद में देयर हार्ट बिकम्स वेरी हेल्दी, जॉइंट्स पूरा चला जाता है। क्यों? बिकॉज आर्टिकुलर कार्टिलेज डज नॉट हैव अ पेरिकॉन्ड्रियम। नाउ लेट अस ड्रॉ अ figure of how hyaline cartilage looks like. Now articular cartilage मैंने बताया सब joints के ends में होता है। non articular कहाँ पे होता है? non articular hyaline cartilage कहाँ पे होता है? 1, सबसे पहले ट्रैकिया, फिर 2 costal cartilage, 3 nasal cartilage। नाक आपको भले इलास्टिक लगता हो, आप उसके साथ खेलते हो, लेकिन देयर आर पीसेस ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ओके, देन 4 थायराइड कार्टिलेज, 5 cricoid cartilage, 6 cricoid cartilage, 6 the apex of arytenoid cartilage in the epiglottis, apex of arytenoid cartilage। ये आप लिखो, 1 मिनट मैं आपको पूछने वाला हूँ लोकेशंस उसके बाद। ओके, सो ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री, क्या ये? कॉस्टल कार्टिलेज, nasal cartilage, thyroid cartilage, cricoid cartilage, apex of arytenoid cartilage. Now let us see how does this look like. ये आपका स्लाइड है। ओके, सपोज ऐसा करते हैं कि इस साइड पे पेरिकॉन्ड्रियम है, तो पेरिकॉन्ड्रियम में इनिशियली ऊपर आपको दिखेंगे फाइबर्स, और उसके नीचे सेल्यूलर लेयर। इस सेल्यूलर लेयर को कौन सा लेयर बोलेंगे आप? कॉन्ड्रोजेनिक सेल लेयर। ओके, इतना कुछ दिखता नहीं स्लाइड में, बट ड्रॉ करते समय, so you call this as fibrous layer and this as chondrogenic layer of perichondrium, ओके। फिर जो सेल्स है, कॉन्ड्रोसाइट्स दिखेंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट, they form the matrix and then they become chondrocytes. So chondrocytes, ये लोग chondrocytes ना, they are present in groups of 3 and 4। ये सेल नहीं है, ये सेल नेस्ट्स है। It is present, there are cell nests which are also called as lacunae, and inside each lacunae there are 2 to 3 to 4, maximum 2, maximum 4, minimum 3, so कभी-कभी 4 cells, okay, of chondrocytes. So chondrocytes are present in lacunae. They are present in lacunae, also called as cell nests, cell nests, okay। और इधर फिर मैट्रिक्स है, और because they secrete the matrix, उनके बाजू में ऐसा जरा सा डार्क मैट्रिक्स का लेयर दिखेगा, which is called as territorial matrix, territorial,
वन शुड नॉट बी टेरिटोरियल, हम लोग बोलते हैं ना, वी शुड नॉट बी टेरिटोरियल कि ये मेरा टेरिटोरी है तो भाई को इधर, बट अपने बॉडी के अंदर ही टेरिटोरियल थिंग्स, टेरिटोरियल मैटर, दिस इज कॉल्ड एज क्या, टेरिटोरियल मैट्रिक्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स, इंटर टेरिटोरियल मैट्रिक्स. So territorial matrix appears dark and interterritorial matrix appears glossy. Interterritorial matrix appears glossy, एकदम glossy. तो आप बोलेंगे अरे सर वो आपने तो बोला था फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स किधर गए? हाँ, Fibers are not visible because the refractive index of the fibers and matrix is same. Because refractive index of fibers and matrix is same. ये 12th में था क्या आपको? तो टेरिटोरियल भी था क्या? इंटर टेरिटोरियल तो मैं जाऊँ क्या फिर? Because it is same. What is same? एग्जाम का क्वेश्चन है कि why this is glossy, why fibers are not seen? Because the refractive index of fibers and refractive index of matrices is same. Therefore, this appears glossy. Fibers are not seen. So this is what you see in slide of non-articular hyaline cartilage. Okay? क्या दिखता है उसमें? Fibrous layer, cellular layer forming perichondrium. Perichondrium with 2 layers. Then matrix with cell nests. Matrix of 2 types, territorial matrix and interterritorial matrix. Interterritorial matrix is glossy. Why it is glossy? Because refractive index of fibers and matrices. Then inside cell nest there are chondrocytes, 2 to 4. Now when it comes to articular cartilage will not have perichondrium. It will not have perichondrium. उसमें थोड़े से फाइबर्स ऐसे माइल्डली दिखते हैं, बाकी का सेम ही रहेगा नीचे. Towards the periphery now, these fibers are initially parallel to the surface, then they are tangential to the surface, and then they are perpendicular to the surface. ऐसे वो 3 zones बोलते हैं, parallel zone, then tangential zone and perpendicular zone. इस तरह से वो फाइबर्स का अरेंजमेंट होता है. और उसके नीचे हाइलाइन कार्टिलेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन हम लोग लिखने का भूल गए, बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस. हाइलाइन कार्टिलेज इवेंचुअली बोन बन जाता है, तो कॉस्टल कार्टिलेजेस भी इवेंचुअली बोन बन जाएंगे. तो मेन जो है, जो हमारा सपोज ये डायफाइसिस है, एपिफाइसिस है, इसके बीच में हाइलाइन कार्टिलेज होता है. ये हाइलाइन कार्टिलेज से ग्रोथ होता है. अगर आज टाइम मिला तो टुवर्ड्स द एंड आई टॉक अबाउट दिस. इससे ग्रोथ होता है. ये जब बोन बन जाता है और ये दोनों यूनाइट होते हैं, ग्रोथ बंद होता है. फीमेल्स में दिस हैपेंस एट द एज ऑफ 16 to 18. In males it happens between age of 18 to 20. Okay? ये फ्यूज हो जाता है. उसके बाद कितना भी जंपिंग करो, फिर स्किपिंग करो, लटको, हाथ से लटको, पैर से लटको, मराठी में लोमकाळणे बोलते, लोमकाळो, कुछ नहीं होने वाला है. आपका हाइट नहीं बढ़ने वाला है, बिकॉज ये फ्यूज हो गया. ओके? उसमें भी कुछ जोन्स होते हैं. नीचे अगर आप देखोगे ना, these are not in the articular cartilage. This is when a cartilage turns into bone. ये zones होते हैं. सर ने सिखा है क्या वो developing bone? Okay, so that is not our today's topic. So currently we will not talk about it. Then is elastic cartilage. Elastic cartilage के locations कहाँ पे हैं? One, epiglottis.
एपिग्लॉटिस। हम लोग वो बोलते ना विंड पाइप होता है, तो जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस उसको क्लोज करता है, फिर ताकि विंड पाइप में खाना नहीं जाए, फिर वो ऐसा ओपन होता है, फिर क्लोज होता है, ओपन होता है। बाद में आपको एपिग्लॉटिस का के बारे में मैं सच्चाई बताऊंगा। मैं उसके ऊपर एक YouTube शॉर्ट बनाने वाला हूँ, एपिग्लॉटिस की सच्चाई। एपिग्लॉटिस एक नंबर का नालायक है। क्या है, जोर से बोलो, नालायक। क्यों? वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, उसको इलास्टिसिटी दिया है, उसको भगवान ने इलास्टिसिटी दिया है कि वो जाके क्लोज करे ट्रकिया को, वो नहीं हिलता है बेचारा ट्रकिया। हर टाइम हम सॉलो करते हैं, जंप मार के अपने आप को क्लोज करते हैं। तो 12th स्टैंडर्ड तक आप ये सीखते हो कि एपिग्लॉटिस ऐसा ऐसा क्लोज करता है। मेडिकल में आने के बाद समझता है ये नालायक ऐसा ही रहता है, और हर बार थायराइड कार्टिलेज के साथ, लैरिंग्स के साथ ये जंप मारता है। सब लोग अपने थायराइड कार्टिलेज पे हाथ रखो, हाँ, और स्वॉलो करो, देखो वो ऊपर जा रहा है क्या। अपने आप को बचाने का, सलाइवा आ गया, बचाओ 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 बचाओ, वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। एवरी टाइम वी स्वॉलो, बेचारा इसके पास इलास्टिसिटी दिया है, वो आराम से जाके ऐसा क्लोज कर सकता है, लेकिन वो काम नहीं करता। कुछ कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं ना, भाई अभी लंच आवर है बाबा, बाद में आओ, अभी नहीं, तो बोलते अभी नहीं, मैं मेरे को नहीं जाने के लिए, तुम लोग भी ऊपर आके अपने आप को क्लोज करो, मेरे को क्या पड़ा है, सलाइवा अंदर गया, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग को ट्रकिया में सलाइवा नहीं चाहिए, फूड नहीं चाहिए, मारो जंप मारो जंप मारो जंप। बेचारे हर बार जिंदगी भर जाने दो, मेरे को मेरा दिमाग सटकता है एपिग्लॉटिस का नाम लिया। फिर ऑडिटरी ट्यूब, फिर बेस ऑफ एरिटेनॉइड कार्टिलेज, ये सब लैरिंग्स में होता है। लैरिंग्स में बेस ऑफ मतलब एरिटेनॉइड कार्टिलेज, खास ह्यूमन एनाटॉमिस्ट ने वाइवा क्वेश्चन पूछे, इसके लिए उसको बनाया गया। उसका एपेक्स इज हाईलाइन, बेस इज इलास्टिक। ओके, और दो कार्टिलेज होते हैं लैरिंग्स में जिसके नाम आपने कभी सुने भी नहीं रहेंगे। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज and corniculate cartilage, यूनिफॉर्म एंड corniculate cartilage। हाँ, इनके बारे में इतना इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि वो इलास्टिक कार्टिलेज। जैसे हमारा महाभारत है ना, महाभारत, उसमें कुंती को 5 पुत्र थे। कौन कौन? भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर। फिर और 2 थे, कौन? नकुल सहदेव। क्या इंफॉर्मेशन है नकुल सहदेव के बारे में आप लोग? ज्यादा इंफॉर्मेशन। वैसे ही कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म, ये हमारे नकुल सहदेव है बॉडी, इनके बारे में एक ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास। क्या है वो? दे आर इलास्टिक। उससे ज्यादा उसके किसी ने उसके बारे में कुछ रिसर्च नहीं किया। वो लैरिंग्स में है, कुंती के पुत्र है, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट और इलास्टिक है, बस। इससे ज्यादा उसके बारे में मुझे भी मालूम नहीं और एनाटॉमिस्ट को भी मालूम। सो दिस इज हाउ elastic cartilage. Now, how do we identify elastic cartilage? First thing, the way which we identify is we see fibers, जो कि हमको हाईलाइन कार्टिलेज में नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे fibers and elastic fibers they branch. And then another characteristic features which you see is large size chondrocytes. लार्ज साइज, तो आपको कॉन्ड्रोसाइट्स जो दिखेंगे, आप अगर ये स्लाइड में देखोगे तो एक्चुअली आपको बड़े बड़े सेल्स दिखेंगे, बड़े बड़े सेल्स, लार्ज साइज कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, सो वी सी इलास्टिक फाइबर्स एंड लार्ज साइज chondrocytes. Okay, this is how the slide will. नहीं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। This is how the slide should look like, but माइक्रोस्कोप के अंदर क्या दिखता है? क्या दिखता है? कचरा। क्या दिखता है? कचरा। पिंक कलर का कचरा। बट जरा सा आप बार बार देखोगे तो वो कचरे में आपको लार्ज साइज कॉन्ट्रोसाइट दिखेंगे। पहले एटम में
नहीं दिखेंगे। चौथी पांचवी बार आप देखेंगे तो थोड़े आपको लार्ज साइज। फिर आपको समझेगा कि हाईलाइन कार्टिलेज में कचरा नहीं है। क्यों? बिकॉज ग्लॉसी है, ग्लॉसी, हाँ ग्लॉसी। यहाँ पे कचरा है, कचरा नहीं, क्या है ये? फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और लार्ज कॉन्ड्रोसाइट्स। ये भी थोड़े सेल नेस्ट में होते, बट ये इतने बड़े होते कि वो सेल नेस्ट, टेरिटोरियल, इंटर टेरिटोरियल ऐसा मैट्रिक्स आपको नहीं दिखता है। तो दिस इज इलास्टिक कार्टिलेज। तीसरा कार्टिलेज कौन सा है? Before we go ahead with any cartilage, one thing you have to know about cartilage is cartilage is avascular. Cartilage is avascular. It is non-nervous. Avascular. तो फिर जो पेरिकॉन्ड्रियम है वो उसके अंदर आर्टरीज होते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर, वहां से नरिशमेंट आता है। पेरिकॉन्ड्रियम हैज आर्टरीज वहां से। तो फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज का क्या? उसका नरिशमेंट साइनोवियल फ्लूइड से आता है। So articular cartilage synovial fluid से nourishment लेता है because avascular है, और non articular will get nourishment from the synovial fluid, from the synovial fluid. Articular cartilage जो है synovial fluid, वो जो बोन के जॉइंट के अंदर है ना, तो वहां से वो अपना ये लेगा nourishment। अभी तीसरा है FC। बॉम्बे में कुछ एफसी कॉलेज है क्या? पूना में है ना एफसी कॉलेज? हाँ, पूना से कौन कौन है? पुणे एफसी कॉलेज क्या है ना? एफसी कॉलेज फर्ग्यूसन कॉलेज, फर्ग्यूसन। तो फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे होता है बॉडी में? इन सी इट इज प्रेजेंट बिटवीन द in between the secondary cartilaginous joints, जिसको हम symphysis बोलते हैं। It forms articular discs in between synovial joints also. So cartilaginous joints में secondary cartilaginous joints जो होते हैं उसके बीच में फाइब्रोकार्टिलेज होता है। जस्ट ये मेरा टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये दिख रहा है इसके अंदर, ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है और ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। दोनों में बोन है, बोन। हाँ, ये जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है उस दोनों के बीच में है हाइलाइन कार्टिलेज। ये है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, उसके बीच में क्या है? हाइलाइन कार्टिलेज। Because there is hyaline cartilage in between, because there is hyaline cartilage in between the bones, this eventually, this is what is called as synchondrosis. Eventually this hyaline cartilage will become bone, and this is called as synostosis. Okay, so the fate of synchondrosis is synostosis. बिकॉज उधर बीच में हाइलाइन कार्टिलेज वो बोन बनने वाला है, तो बोन बोले चलो हम सब एक हैं, हिंद देश के निवासी हम सभी एक है। तो वो यूनाइट हो गया, वो ज्वाइंट रहा ही नहीं उधर। अरे यहाँ पे ज्वाइंट हुआ करता था, नहीं हम सब एक। लेकिन ये ऐसा नहीं, यहाँ पे बीच में होता है फाइब्रो कार्टिलेज। क्या होता है बीच में? हाँ, तो दिस इज सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, यहाँ पे बीच में होता है। सो दिस इज परमानेंट। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये मिडलाइन में होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। हाँ, मैन्यूब्रियम। ओके, तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट तो यहाँ पे होता है। तो मतलब वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में, ये वर्टिब्रल बॉडी है एक, बोन, ये वर्टिब्रल बॉडी है दूसरी, बीच में जो डिस्क होता है, हम लोग सुनते हैं ना डिस्क, क्या बोलते हैं? डिस्क होता है, डिस्क। तो वो जो डिस्क होता है वो क्या है? कौन सा कार्टिलेज है? हाँ, फाइब्रो कार्टिलेज। वो फाइब्रो कार्टिलेज है, लेकिन ये डिस्क प्रोलैप्स होता है। आपने सुना रहेगा ना,
प्रोलैप्स क्यों होता है? बिकॉज हमारा सारा बॉडी का जो वजन है, ऐसा अगर हम उठाते हैं तो हाथ से, यहाँ से रिब से ऐसा ऐसा जाता है नीचे। आपको लगा इधर से उठा रहे, नहीं नहीं, बट जाता है यहाँ से।